فرمائش کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے 2 یا 1 شعر پڑھوں گا. پھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کی مشغولیت کی وجہ سے میں ذہن بہک رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں کیا تقریر کر رہا ہوں مجھے پتا بھی نہیں چل رہا, اس لیے میں مختصر سے تقریر کر کے ختم کر دوں گا. بیٹھ کر سنیں جو شعر پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہدایت بخشش کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, اگر سمجھ میں آئے تب بھی اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا, کیونکہ شعر رضا ہے اس میں بہت زبردست پہلو ہے, کوئی سمجھ بھی پائے نہ بھی سمجھ پائے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. بے شک بے شک. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک کعبہ تو دیکھ چکے, بابا کیا بات ہے. اور اعلیٰ حضرت جب بھی ارشاد فرمائے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ اور کوئی نہ کوئی پوشیدہ بات اس میں موجود ہے, ارشاد فرمائے ہیں جو وضاحت کیے ہیں بالکل سارے لوگ پتہ پا گئے کیا کہنا چاہتے ہیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. بریلی کے امام احمد رضا کہنا چاہتے ہیں, اے حاجیو تو نے سرزمین مکہ میں قدم رکھ دیا, جو ارکان حج ہے ادا کر دیا, اب یہ کعبہ تو دیکھ چکے, جہاں پہلے گئے تھے مدینہ اس کعبے کا کعبہ ہے اسے بھی دیکھو, اسے بھی دیکھو. مگر یاد رکھنا ہے انسان ذرا غور کرو, اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ اگر اس کعبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, قبلہ کے تعلق سے جانکاری لینا چاہتے ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بس استشہاد کے لیے میں ان لوگوں سے طرف اشارہ کروں گا, بالکل توجہ آپ کی طرف ہے, ذہن کو قریب کیجئے گا. یاد رکھنا کعبے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا, قبلہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہے سب بیت المقدس کے طرف سر جھکائے, یعنی سب کا قبلہ بیت المقدس, سب کا قبلہ بیت المقدس کے طرف. آدم سر جھکائے بیت المقدس کے طرف, یحییٰ سر جھکائے بیت المقدس کے طرف, ذوالقفل سر جھکائے بیت المقدس کے طرف, زکریا سر جھکائے بیت المقدس کے طرف. میرے سرکار بھی سر جھکائے بیت المقدس کے طرف. نماز مغرب میں کھڑے ہیں, بار بار نگاہ اٹھا کے آسمان کے طرف دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہی کہہ رہے ہیں, اے مولا قبلہ مسجد حرام کے طرف کر دے, اے مولا قبلہ مسجد حرام کے طرف کر دے, اے مولا قبلہ مسجد حرام کے طرف کر دے. اس لیے کہ رب کی ذات ہر طرف ہے. اللہ کا قرآن ہے, پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی اللہ ہی کے لیے ہے, مغرب بھی اللہ ہی کے لیے ہے, شمال بھی اللہ ہی کے لیے ہے. تم جدھر سر جھکاؤ اے مصطفیٰ ادھر تیرا رب ہے, پورب طرف سر جھکاؤ ادھر تیرا رب ہے, دکن طرف سر جھکاؤ ادھر تیرا رب ہے. جدھر سر جھکاؤ مصطفیٰ ادھر تیرا رب ہے. تو چاہتا ہے کہ قبلہ مسجد حرام کے طرف ہو جائے, سن لو مصطفیٰ, اللہ کا قرآن ہے, دوسرا پارہ چیپٹر نمبر 1 کی آیت کریمہ ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مصطفیٰ تیری رضا جدھر ہوگی قبلہ ادھر ہوگا. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, عظمت مصطفیٰ حضرت تنویر القادری صاحب کیلا. اے مصطفیٰ تیری رضا جدھر قبلہ ادھر. تبھی تو میرے پیر و مرشد حضور اختر رضا اظہری میاں دیکھتے کہ سرکار کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے, تبھی شعر لکھتے ہیں, جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ,
फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीन कोच भी जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अब जहन को करीब कीजिए, पता ये चला मेरे सरकार जिस किबला को हासिल किए हैं वो पहले से नहीं बाद में सरकार की रजा से दिया गया है। पता ये चला, बात समझ में ये आ गई कि सरकार मेहनत और मशक्कत से हासिल किए। अब बरेली के इमाम अहमद रजा के दर पे जाइए, इमाम अहमद रजा फरमाते हाजियों आओ शहंशाह का रौसा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। काबे का काबा देखो। मैंने बरेली के अहमद रजा के दर पे गया। याद रखना बरेली के अहमद रजा की तहकीक के सामने बड़े बड़े लोग सरनिगो हो जाते हैं। जिस मसला पे काजी अयाज जैसा आदमी सुकूत कर ले, बरेली के अहमद रजा कहते फकीर के लिए आसान मसला है। क्या बात है, वाह वाह। के लिए आसान मसला है। जिस मसले पे बड़े बड़े लोग सुकूत कर जाए, खामोश हो जाए। किसी ने काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया, एक काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह जरा आप इस बात से वजाहत कर दे कि सरकार मुस्तफा को अफजल माने या कलामुल्लाह को अफजल माने। वाह 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 वाह, क्या जुमला है। कलामुल्लाह को अफजल माने या सरकार मुस्तफा को अफजल माने। याद रखना काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मसला बहुत सख्त है इसलिए सुकूत किया जाए। मसला बहुत सख्त है इसलिए सुकूत किया जाए। फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कुरान को अफजल बताए या सरकार मुस्तफा को अफजल बताए। यही मसला जब बरेली के अहमद रजा मुजद्दिद मियात माजिया के बारगाह में कोई लेके आया कि कुरान को अफजल बताए या अल्लाह के रसूल को अफजल बताए, बरेली के अहमद रजा कहते फकीर के लिए बड़ा आसान मसला है। फकीर के लिए बड़ा आसान मसला है। फकीर के लिए बड़ा आसान मसला है। कहते हुजूर वजाहत फरमा दीजिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते अगर कलामुल्लाह से मुराद अल्लाह का कलाम लिया जाए, सिबते इलाही लिया जाए तो कलामुल्लाह अफजल, इसलिए कि अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है, सरकार मखलूक है, अल्लाह का कलाम अफजल है। अगर कलामुल्लाह से मुराद जो नुस्खा देख रहे हैं, जो कागज में लिखी हुई बात देख रहे हैं, जो स्याही देख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज मखलूक है, हदीस पाक है उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक के लिए नबी बना के भेजा और तमाम मखलूक में मेरे सरकार आला है। ये स्याही से लिखी हुई बात जो कागज देख रहे हैं, जो स्याही देख रहे हैं, ये मुराद हो तो सरकार अफजल है, अगर खास कलाम मुराद हो तो अल्लाह का कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस वस्ताद शोरा मुमताज नैयर साहब गिबला। नारे तकबीर, वाह। तवज्जो कीजिएगा, अब उस बरेली के अहमद रजा के किसी शेर को गलत नहीं कहा जा सकता। बरेली के अहमद रजा कहते हाजियों आओ शहंशाह का रौसा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मैंने पूछा ए बरेली के अहमद रजा मेरे सरकार का रौसा काबे का काबा कैसे हो गए? वो कहते किताब पढ़ो बात समझ में आएगी। सुभान अल्लाह, बात समझ में आएगी। अब किताब उठाइए, लिखने वाले का नाम फैज अहमद उवैसी साहब, उनकी इल्मी लियाकत आला हजरत की किताब हदायत बख्शिश की शरह 31 जिल्द में लिखे हैं, कितने बड़े आलिम। वो कहते हाँ हाँ मेरे सरकार काबे का काबा हुए। मैंने पूछा ए बरेली के अहमद रजा कैसे? तो कहते फैज अहमद उवैसी साहब का किताब पढ़िए, फैज अहमद उवैसी साहब का किताब पढ़िए। जब किताब पढ़ा तो वो कहते हाँ हाँ बात सही है। अब सुनिए मेरे मोहतरम, बस बात पूरी भी नहीं कर पाया हूँ, शायद टाइम हो गया, इसलिए जहां तक मैं कोशिश करूँ कि सिमेट कर जल्दी बैठ जाऊं। जहन को करीब कीजिएगा, बात समझ में इंशाअल्लाह आसानी से आ जाएगी। मैंने पूछा कैसे काबे का काबा हुए? 5 से 7 मिनट की बात तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो फैज अहमद उवैसी साहब कहते हैं हाँ हाँ बात सही है, मेरे सरकार काबे का काबा है, जमीन न बनाई गई थी, अल्लाह का अर्श पानी पर था। रब जब चाहा कि जमीन बनाऊं, जिब्रील से कहा ए जिब्रील वो जगह तलाश करो जहां पे बुलबुला नजर आए।
जहां पे एक 5 मिनट सुकून से उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। इस तरह से डिस्टर्ब कीजिएगा तो तकलीफ का हो, खाली नाश्ता के बाद में कर लीजिएगा बस। बार बार ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा। तो कह रहा था कुरान पाक का 12वां पारा चैप्टर नंबर 1 की आयत करीमा, वकाना अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था, जमीन न बनाई गई थी। रब जब चाहा कि जमीन बनाऊं, जिब्रील से कहा ए जिब्रील वो जगह तलाश करो जहां पे बुलबुला नजर आए। जिब्रील वो जगह तलाश किए जहां पे बुलबुला नजर आया। अल्लामा फैज अहमद उवैसी साहब लिखते हैं उसी बुलबुला से खमीरे मुस्तफा भी ली गई और वहीं पे काबा भी नस्ब किया गया। बात समझ में आ गई, जो बातिनी काबा है वो खमीरे मुस्तफा है। अभी तो बरेली के अहमद रजा लिखते हाजिरो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। ये तो जाहिरी का बातिनी काबे की बात थी। अब जाहिरी काबा में क्या है, जो हद से सरफराज हुए हैं उनसे पूछिएगा, वो यही कहेंगे ईद है, चूना है, पत्थर है, यही सारी चीज तो है। ईद है, चूना है, पत्थर है। अब हदीस पाक सुनिए, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजा। आदम के नबी है मेरे सरकार, यहया के नबी है मेरे सरकार, ज़ुल्किफ्ल के नबी है मेरे सरकार, ज़करिया के नबी है मेरे सरकार, ईसा के नबी है मेरे सरकार। कोई ये ना कह दे सुबह कि आदम से लेकर ईदम तक हर व्यक्ति को मौलाना गिना रहे थे। जब सरकार 1400 साल पहले से ही है तो उससे पहले वाले के नबी कैसे हुए थे? क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, वाह वाह। पहले वाले की नबी कैसे हुए तो अपने तरफ से नहीं बताऊंगा, एक ऐसी किताब का हवाला दूंगा दुनिया का कोई मुल्ला नहीं झुटला सकता। दुनिया की किसी मुफ्ती की किताब देखेंगे, शुरू में यही लिखी बात होती है, किसी किस्म की गलती हो खबर कीजिएगा, आगे एडिशन में सही कर दी जाएगी। अल्लाह का वाहिद किताब कुरान है, जब खोलिएगा लिखी हुई बात होगी, दिस इज द सिलेक्टेड बुक इन विच देयर इज नो प्लेस फॉर ए गार्डन ऑफ व्यू। ये वो किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अब उस किताब का हवाला लीजिए, मेरे सरकार आदम के नबी कैसे है, मेरे सरकार यहया के नबी कैसे है, मेरे सरकार ज़ुल्किफ्ल के नबी कैसे है। अल्लाह का कुरान है 3रा पारा चैप्टर नंबर 19 सूरह आले इमरान की आयत करीमा, वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा इला आखिर आया। जो लोग कहते हैं मुस्तफा को 1400 साल पहले से मानो, रब तो कह रहा है मुस्तफा याद करो जब आलमे अरवाह में अहद ले रहे थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। आलमे अरवाह में अहद ले रहे थे। याद रखना, इब्ने अब्दुल्ला का जमाना मिले, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना मिले तो इन पर जरूर ईमान लाना, उनकी मदद जरूर करना। याद रखना, सारे नबी जिम्मेदारी लिए, तब अल्लाह ने किसी को नबूवत दिया, किसी को रिसालत दिया। बात समझ में आ गई तो सारे नबी के नबी है मेरे सरकार, आदम के नबी है मेरे सरकार, यहया के नबी है मेरे सरकार, ज़ुल्किफ्ल के नबी है मेरे सरकार, ज़करिया के नबी है मेरे सरकार, ईसा के नबी है मेरे सरकार। काबे के अंदर जो ईंट है उसके भी नबी है मेरे सरकार, काबे के अंदर जो चूना है उसके भी नबी है मेरे सरकार, काबे के अंदर जो पत्थर है उसके भी नबी है मेरे सरकार। तो समझ में आ गई, जो जाहिरी काबा है उस काबे का भी काबा है मेरे सरकार। अभी तो लिखते हैं बरेली के सरकार, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। इस ताल्लुक से एक आखिरी बात जो पॉइंट इसमें है, वो एतराज सुबह कोई कर दे तो क्या जवाब दीजिएगा? दे दे जवाब, क्योंकि कुरान पाक का 16वां पारा चैप्टर नंबर 14 की आयत करीमा है। मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जहां की मिट्टी से बनाए जाए वहीं पे दफन किया जाएगा और फिर वहीं से उठाया जाएगा। जब मोर्रिख लिखते सरकार मुस्तफा की खमीर नाफे काबा से ली गई तो आयत करीमा के तहत दफन भी काबे में ही होना चाहिए, मदीना में क्यों? क्या बात है। वजह
वही फैज अहमद उवैसी साहब कहते हैं बात दरअसल यही है कि मेरे सरकार को दफन वही होना चाहिए। वजह ये है कि बारूए जमीन पानी से खाली नहीं था, जिसे तूफान नूह कहते हैं। उस तूफान ने ऐसा तूफान मचाया, काबे के अंदर पानी और वो झोंका उस मिट्टी को जहां से खमीरे मुस्तफा ली गई थी, कटाते हुए मक्का से मदीना पहुंचाए। तूफान नूह के वजह से मनाए तो मक्के की मिट्टी से गए और कफन मदीने में हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा लॉन्ग समय लेना अच्छा नहीं है, इसलिए बेशुमार उलमा मुखय्यर कौमो मिल्लत मेरे दिल का धड़कन हजरत अल्लामा मौलाना शमीम साहब किबला, जिनसे मैं काफी मोहब्बत करता हूँ, वो भी स्टेज पे बैठे हैं, उनसे भी खिताब सुनिएगा। याद रखना मगर खिताब जरूर सुनिए, खाली नाक खाली पे इत्तेफा मत कीजिए। आज हमारा तो कुरान को पढ़ के सिर्फ एक चीज सीखा है, कुरान को किस काम के लिए पढ़ते हैं? जब बाप मरने वाला होता है तब मौलाना साहब और इमाम साहब को बुला के लाते हैं और लाके कुरान पढ़वा देते हैं कि मौलाना साहब कुरान पढ़ दो ताकि मेरे बाप को रूह आसानी से निकल जाए। बस यही, जबकि एक लफ्ज कुरान को जिंदगी देने के लिए है, मगर लोग रूह निकालने के लिए बाकी रखी है। इसलिए कि आज हमारे कौम कुरान को नहीं पढ़ते हैं, आज हमारे कौम कुरान को खोल के नहीं देते। ये कुरान क्या पढ़ेंगे, इसे पेपर पढ़ने से फुर्सत नहीं है, ये मौलाना की तकरीर क्या सुनेंगे, नाक खाली से फुर्सत नहीं है। याद रखना, लोग नाक खाली पर इतना जोर दे दिए, आज से 10 साल पहले लोग तकरीर के आड़ में नाक खाली करते थे, आज नाक खाली के आड़ में लोग तकरीर करते हैं। नाक खानी के आड़ में लोग तकरीर करते हैं। याद रखना ए मुसलमान, यही तुम्हारी सोच और थिंकिंग रह जाएगी, यही नजरिया लेकर के रहोगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी तारीख लिखने वाला कोई बाकी नहीं होगा, तुम्हारी हिस्ट्री लिखने वाला कोई बाकी नहीं होगा। कभी आपको हिंदुस्तान से पाकिस्तान भगाया जा रहा है, कभी बांग्लादेश भगाया जा रहा है, कभी आपने गौर नहीं किया, कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने